Hello everyone, welcome back to the Maths Online classes, and in this volume we are going to discuss about the remaining questions of the exercise 7.1 which is based on the trigonometric identity of the class 10th from the RBSc syllabus. So let's start. The remaining question is question number 27. It is the first question of the today's lecture. Question number 27, which is our statement is cosec A minus sin A. Cosec A minus sin A into sec A minus cos A. And we have to prove it with equal to 1 upon tan A plus cot A. So first of all select the LHS one, which is right here LHS, which is cosec A minus sin A into sec A minus cos A. Clear? Now convert this one and this one. This one will be converted into sin A and this one will be converted into cos A. So our next step will become 1 upon sin A minus sin A, and sec A is 1 upon cos A minus cos A. Clear? चलिए फिर आगे. LCM of these both is sin A. Now it will become sin A divided by sin A 1 multiplied by 1 is 1 minus यहां से sin A मिलेगा फिर multiply by this sin square A, and similarly for this we can say that cos A is LCM. cos A यदि LCM हुआ तो अपने पास मिला 1 minus cos square A. Got it? Now it is equals to cos square A upon sin A, and this is equals to sin square A upon cos A. और हमें क्या चाहिए? ये वाला सिस्टम चाहिए. चलो देखते हैं कैसे होगा. ये कैंसिल हुआ इससे और ये कैंसिल हो गया इससे. क्या बचा? cos A इंटू sin A. बात समझ में आई यहां तक? अब चलो देखो, अब हमें इसको ऐसा बनाना है, या तो इसको सिंप्लीफाई करके ये ले आए या फिर इसको इसके जैसे में कन्वर्ट करें. तो हम ये लिख सकते हैं, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 1. क्लियर है बात यहां तक? और हम इसको यूं लिख सकते हैं शायद sin A इंटू cos A अपॉन sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A. क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, क्योंकि 1 इक्वल टू होता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A. And now we need 1 in the denominator. So what should we do? We will divide the numerator by this thing, by the sin A cos A, and the same thing will apply in the denominator also. So what I am trying to do, I am dividing the numerator and denominator both with by the sin A into cos A. तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, numerator क्या अपना sin A into cos A, इसको डिवाइड कर दिया मैंने sin A into cos A अपॉन डिनोमिनेटर क्या है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, और इसको भी डिवाइड कर दो आप sin A into cos A, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपना रिजल्ट यही बचेगा जो कि ये है. मींस आपने क्वेश्चन पे कोई चेंजमेंट नहीं किया है. नेक्स्ट स्टेप, इट विल बिकम 1 अपॉन, नाउ सेपरेट दिस डिनोमिनेटर विद दिस न्यूमरेटर एंड दिस वन. तो ये अपने पास है sin स्क्वायर A अपॉन sin A इंटू cos प्लस cos स्क्वायर A अपॉन sin A इंटू cos. क्लियर? sin स्क्वायर कैंसिल बाय sin, cos स्क्वायर कैंसिल बाय cos. क्या बचा? 1 अपॉन sin A अपॉन cos A, विच इज tan A
and cos A upon sin A, which is equals to cot A. So this is the required answer, and which is equals to RHS, hence A. So please student, pause the video and note it down and start next question. Question number 28. Question is cos square theta upon 1 minus tan theta plus sin cube theta upon sin theta minus cos theta. And what we have to prove for this one? 1 plus sin theta into cos theta. चलिए फिर करते स्टार्ट. So first of all select the LHS as given. LHS सेलेक्ट करें तो जो भी है लिख दिए एक बार, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा. चलो अब आगे की स्टेप. चेंज दिस tan थीटा इनटू sin cos. तो ये अपने पास बना cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा. ये एज इट इज, इसको डेनोमिनेटर सॉरी इसका एलसीएम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम cos स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम इज cos थीटा. यहां पे आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा. ये स्टेप मिल गया. अब देखो ये एक रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, तो इसका डेनोमिनेटर अपन 1 कंसीडर करेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा विल बिकम cos क्यूब थीटा. cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा. बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट अपन अब देखो यहां पे अब एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे तो ये है cos थीटा माइनस sin थीटा और ये है sin थीटा माइनस cos थीटा. ओनली द डिफरेंस ऑफ द सिंबल. सो टेक द माइनस कॉमन फ्रॉम हियर. सो इट विल बिकम cos थीटा माइनस sin थीटा. ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. तो cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. बात समझ में आई यहां तक? अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा, बिकॉज बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. नाउ एलसीएम इज cos थीटा माइनस sin थीटा. तो जब डिनोमिनेटर सेम वैल्यू आपकी एलसीएम है तो जो भी आपके पास न्यूमरेटर में अवेलेबल है वो न्यूमरेटर में रह जाएंगे. एंड cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा. नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर दिस वन. यहां पे लिख देता हूं a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये इसकी आइडेंटिटी हो गई. तो यहां पे अप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. ये सेकंड से. बात समझ में आई यहां तक? क्या बचा आपके पास? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा. और ये हो गया 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा. sin थीटा इंटू cos थीटा फॉर्म गया.
विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। और अपन ने यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज ली है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड हेंस ट्रू। So this is the required answer of the question number 28. So please student, pause the video and note it down. Let's start the next question, question number 29. Our 29th question is, if P is equals to, this is the very important question from the view of the examination point. P is equals to sec theta plus tan theta. It is given. If P is equals to sec theta plus tan theta, then prove that P square minus 1 upon P square plus 1 is equals to sin theta. मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि P की वैल्यू यदि अपन यहाँ पे ये रख के उसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, साइन थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लेफ्ट हैंड साइड विच इज P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1। अप्लाई द वैल्यू, तो हमें वैल्यू अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, P इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले P को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P को सेपरेटली सिंप्लीफाई करें तो अपने पास देखो बाद में अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई P, इजी बन जाएगा। P इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा, देन P इज इक्वल्स टू सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम इज कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, P की, और ये वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दीजिए जिससे हमें मिलेगा नाउ सेलेक्ट एलएचएस विच इज P स्क्वायर माइनस 1 एंड P स्क्वायर प्लस। इसमें यदि अपन P की वैल्यू अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा upon cos theta and plus 1 and it will be whole square. क्लियर है बात? अब देखो, now separate the square for the both numerator and denominator. next step होगी 1 plus sin theta whole square upon cos square theta minus 1 upon 1 plus sin square theta, सॉरी साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इसका, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो ये बना 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम, रिजल्ट आएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक? नाउ अपन ये कैंसिल होगा इससे, इसको अपन कर लें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें कंप्लीट आंसर चाहिए साइन थीटा में, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दें। ये तो देखो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू विल राइट द रीजन ऑल्सो फॉर बिहाइंड इट अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो एक 1 तो यहां से 1 प्लस 2 साइन थीटा। क्लियर? नाउ ओपन दिस वन, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2
प्लस 2 साइन थीटा, -1 कैंसिल बाय +1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 इज कॉमन 1 प्लस साइन थीटा, यहां से 2 साइन थीटा कॉमन आएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा यहां बचा +1, ये बाहर चला गया +1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 2 कैंसिल बाय 2, 1 प्लस साइन थीटा बाय दिस, रिजल्ट क्या मिला, साइन थीटा, एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड वी हैव प्रूव्ड आवर question number 29. So please stand, pause this and note it down, and let's proceed on the next question, which is question number 30. और 30th question is, क्वेश्चन दे रखा हमें इफ m इज इक्वल टू cos A अपॉन cos B, m इज इक्वल टू cos A अपॉन cos B एंड n इज इक्वल टू cos A अपॉन sin B, then prove that what we have to prove, m square प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो अपन पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ओनली दिस वन विद द हेल्प ऑफ m एंड n, पहले अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, आई एम नॉट सेलेक्टिंग दिस वन होल, आई एम सेलेक्टिंग ओनली दिस वन, m स्क्वायर इज cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B प्लस n स्क्वायर इज cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B. Got it? Now take the LCM. LCM is the product of these, so which will sin square B into cos square B. Cos square B cancel by this, only this one is remaining and it will multiply by this. So we will get our result cos square A into sin square B plus sin square B cancel by this, then these will both multiply by each other, cos square A into cos square B. Clear है बात यहां तक? Is there anything common? Yeah, cos square A is common, so take it out. cos स्क्वायर ए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर ये कि जितना मैथमेटिकली सोल्व कर पाओ करो, कॉमन उस पे आइडेंटिटी अप्लाई करो, फिर यदि कॉमन आ सकता है तो कॉमन लो, और फिर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, इजी बनता जाएगा। क्या बचा, cos sin स्क्वायर बी इन प्लस sin स्क्वायर बी प्लस, ये बाहर चला गया, ये भी चला गया, ये बचा और ये बचा, एंड cos स्क्वायर बी अपॉन sin स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर बी। बात समझ में आई आपके यहां तक? चलिए, ये हुआ 1, तो हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी, एंड दिस इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली वी कैन से दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन sin square b into cos square b. Got it? Now select the LHS. हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, हमें ये भी चाहिए। Now LHS which is equals to m square plus n square सही है क्या? हाँ, into cos square b, और रिजल्ट में हमें क्या, ये वैल्यू यहां से ये वैल्यू अप्लाई कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करें तो cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर बी इंटू
cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b, ये से कैंसिल हुआ और अपने रिजल्ट लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? क्या बचा अपने पास? cos स्क्वायर a अपॉन sin square b, and for this we can say that cos a upon sin b whole square, and cos a upon sin b is equals to n, sorry n यहां से, तो ये मिला हमें n square which is equals to r, hence true. So finally we have completed our last question of the exercise, which is the 30th question of the exercise 7.1, and in this manner we have completed our exercise 7.1, and in the next video we will discuss about the basic introduction, the basic formulas, and some examples, practice questions of the exercise 7.2. So please student, regularly watch the videos continuously, make your presence continuously, and make practice each and every question which is related with your syllabus. Okay student, and if you feel any kind of the doubt, then you can comment in the comment box. So please watch regularly and try to understand each and everything. So thanks for watching this. Thanks again.